श्री आबिर रंजन विश्वास। Sir, question number 121. Honorable Minister. Question number 121. Honorable Minister. Sir, statement is laid on the table of the House, sir. Supplementary one. Sir, I have two important supplementary questions, sir. But I feel much more important is Manipur to be discussed under 267. Please oblige. Question number 122. Dr. Kanimoji NVN Somu. Honorable Minister. Honorable Minister 122. Shri Naresh Bansal supplementary. Shri Naresh Bansal supplementary. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि कुछ सरकारें आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर को इम्प्लीमेंट ना करके मोहल्ला क्लिनिक्स में उन्होंने कन्वर्ट किया है। तो जो केंद्र सरकार के साथ MOU उनका हुआ है, ये उसका वायलेशन है। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, क्या इसको सही करने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है? माननीय सांसद जी ने सवाल रखा है। उन्होंने कहा है कि जो PPP मोड पे चलाए जाते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज, सर उसके लिए आदरणीय चेयरमैन सर, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट वो उनके सुपरविजन भी करता है और उनका मॉनिटरिंग भी करता है। और ये जो PPP मोड में जो अरेंजमेंट रहती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज हो या प्राइवेट पार्टनर्स हो या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट या पेमेंट, ये सभी सर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उनके अंडर आता है। और वो सभी हेल्थ केयर सिस्टम को हम स्ट्रेंथन करने के लिए चलाते हैं। उसमें नॉट फॉर प्रॉफिट के माध्यम से ये चलाते हैं, कुछ NGO भी चलाते हैं, कुछ CSR एक्टिविटीज से भी चलाते हैं। तो आदरणीय सांसद महोदय को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसके साथ हमारे एडिशनल रिसोर्सेज जैसे पंचायत राज का भी इंस्टीट्यूशन मदद कर सकता है, अर्बन लोकल बॉडीज भी मदद कर सकती है, NGO के साथ साथ कॉर्पोरेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमारे जो सांसद महोदय उनके MP लैड के माध्यम से भी ये हम PPP मोड पे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को मदद कर सकते हैं। धन्यवाद सर। Dr. Amar Patnaik. Number 122, sir. So my supplementary is, has the Ministry of Power received a proposal from Odisha government to amend its order dated 22nd July 2022 by a circular number to treat all renewable energy under one basket and specify only total RPO, not technology-wise RPO, because due to separate targets being stipulated for wind and hydro, which cannot be offset from other RPO procurement, the state of Odisha is forced to procure additional renewable capacity under these categories only to meet the individual wind and hydro purchase categories. Honorable Minister. Honorable Chairperson, sir, we have actually made 85% of the obligation fungible. That means 85% of the obligation can be met from any renewables. It's only 15% which has been reserved for hydro and wind, because these are two technologies which are necessary for balancing and which are slightly more expensive than solar. So if we don't keep a specific mandate for wind and hydro, then that wind and hydro will not come at all. We'll only have solar. So we during midday we'll have so much of solar that we'll have to give energy free, and during the evening hours when wind is when wind is prevalent, we'll not have any wind energy. So that's why we have kept only 15% mandate, 85% is fungible. Question number 123, Shri Akhilesh Prasad Singh. Honorable Minister.
Question 123, Honorable Minister सदन के पटल पर रख दिया। Shri Vijay Sai Reddy, Supplementary Question 123. In 2014, 2017 and 2022, thus leading to shortage of drugs. So, what checks and mechanisms will the ministry implement to ensure that this does not happen in future? Honorable Minister. 1992 से स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में भारत में नेशनल एड्स और एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रिवेंशन, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट है। इसके व्यापक पैकेज के माध्यम से राष्ट्रीय एचवी एड्स और एसटीडी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। वर्तमान में एनएसीपी 2021 से 2026 का फेज 5वां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है। इंडिया एग्जामिनेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में लगभग 24.67 लाख HIV एड्स पीड़ित हैं। पीपल लिविंग विथ HIV जो मैं बता दूंगा राज्यवार हमने आपको दी है। HIV का कोई इलाज नहीं है। PL-HIV के लिए जीवन भर एंटी रेट्रोविरल ART की आवश्यकता होती है, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है। ये 2004 से NACP के तहत शुरू की गई है और कार्यक्रम के तहत उपचार देखभाल का लाभ उठाने वाले सभी पीपल लिविंग विथ HIV के लिए जीवन भर मुफ्त गुणवत्ता वाली दवाओं के निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। चेयरमैन सर, देश भर में 725 ART केंद्रों और 1261 लिंक ART केंद्रों के माध्यम से HIV से पीड़ित लगभग 16 लाख लोगों को ARV दवाई प्रदान की जा रही है। उपचार के प्रभाव को निगरानी रखने के लिए पीपल लिविंग विथ HIV पर फ्री वायरल लोड टेस्टिंग की भी पेशकश की जा रही है। जहां तक नाको है, नेशनल एड कंट्रोल सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी के माध्यम से PL-HIV के लिए 13 विभिन्न प्रकार की ARV दवाएं हम लोग खरीदते हैं। ARV दवाओं को ART केंद्रों के आगे वितरण के लिए 26 स्टेट्स में जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी हैं, स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, उनको हम लोग आपूर्ति की जाती है। जहां तक पीपल लिविंग विथ HIV को इन दवाओं का नुस्खा और वितरण भी किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन टीम द्वारा नियमित आधार पर ARV दवा के स्टॉक की सावधानी पूर्वक निगरानी भी हम लोग करते हैं। किसी प्रकार की कमी ना रह पाए, इसके लिए जब भी आवश्यकता होती है ART केंद्रों की रीलोकेशन कर दी जाते हैं। स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी को आवश्यकता अनुसार आपातकाल में ABV का लोकल प्रोक्योरमेंट करने का भी अधिकार दिया गया है। इसके लिए ARV ड्रग्स फॉर एक्सेप्शनल केसेस नामक हेड के अधीन हम लोग स्टेट को धन भी आवंटित करते हैं। जहां तक कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन रहा था, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने अपने प्रयासों से और संवेदनशीलता का परिचय एड्स पेशेंट के प्रति दिखाते हुए वो भी दवाई एक भी दिन के लिए बाधित नहीं हुई थी। ये सुनिश्चित किया था किसी समय स्थानीय स्तर पर भी इसकी अनुपलब्धता ना हो। मैं महोदय जो पीपल लिविंग विथ HIV की देखभाल उपचार के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार पीपल लिविंग विथ HIV के लिए ARV दवाएं विभिन्न संयोजनों में निर्धारित की जाती है। जहाँ तक डोलुटिग्रेवियर एक एंटीवायरल दवा है जिसे 2020 में नेशनल प्रोग्राम आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में इंट्रोड्यूस किया गया है। डोलुटिग्रेवियर इज इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ टाइप ऑफ HIV, HIV-1 और HIV-2। ये न्यूनतम साइड इफेक्ट वाली दवा है और एक शक्तिशाली दवा है और रोगियों को ओरल रूप से दी जाती है।
कार्यक्रम के तहत HIV पॉजिटिव एडल्ट, किशोरों और बच्चों के इलाज के लिए डोलोटेग्रेवियर सबसे पसंदीदा एंटी रेट्रोवायरल दवा है। आपका बहुत सारा एंटी रेट्रोवायरल के ऊपर सवाल था। लगभग 95% मरीज डोलोटेग्रेवियर बेस्ड दवाओं पर हैं। मैं महोदय ये भी कहना चाहूँगा कि डोलोटेग्रेवियर की राष्ट्रव्यापी कमी की कोई सूचना नहीं है। करंट स्टेटस ऑफ ART मेडिसिन डॉक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ TLD, ये बहुत प्रसिद्ध है। ये 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है जिसमें सिंगल टैबलेट डॉल्टियर एज ऑन ओनली 2023 इंक्लूड NH2 में नेशनल वाइड करेंट स्टॉक स्टेटस ARY का मेडिसिन। आप चाहें तो मैं आपके राज्य का भी बता सकता हूं कि वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा, मैं राज्यवार भी बता सकता हूं महोदय। 28 अप्रैल 2023 को रखे गए इंडेंट के लिए खरीद प्रक्रिया जारी है और आपूर्ति दिसंबर 2023 से शुरू होने की उम्मीद है। द इंडेंट शुरू डोलोटेग्रेवियर LTD डिसाइड 11 अदर ARV मेडिसिन और यह मात्रा 2 वर्षों की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त है। इसलिए किसी भी केंद्र पर सेंटर पर कभी भी दवा उपलब्ध दे रही है उसकी दुगनी मात्रा में वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और इसमें भाजपा शासित राज्य या गैर भाजपा शासित राज्य के नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और 2030 तक कोशिश करेंगे कि एड्स में 80% उनके मरीजों में कमी आए। थैंक यू मिस्टर मिनिस्टर। कार्यक्रम के तहत TLD की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 21 सितंबर 2022 से 50% अतिरिक्त खरीद का भी प्रस्ताव है। अगर आप अपने राज्य के बारे में अगर जानना चाहेंगे महोदय तो मैं तेलंगाना के बारे में बता दूं कि 1,58,974 हम लोग आकलित कर रहे हैं कितने मरीज हैं, लेकिन जो है 97,169 मरीज जो हो चुके हैं और चिन्हित दवा हम लोग उनको दे रहे हैं। और जहाँ तक तेलंगाना के बारे में दवाई का मामला है तो लगभग 33,94,525 वहाँ पर दवाइयाँ रिक्वायरमेंट है और हम लोग वहाँ 39,082 दवाइयाँ तेलंगाना को उपलब्ध करा चुके हैं। बस मैं इस मामले में कहना चाहूँगा कि जो देख रहा हूँ डॉक्टर अनिल जैन जो आंकड़े देख रहा हूँ उसमें में दक्षिण भारत के 5 राज्य हैं। तो मैं दक्षिण भारत के राज्यों की राज्य सरकारों से भी कहना चाहूँगा कि महोदय थोड़ा इसके बारे में भारत सरकार पूरी तरह से दवाइयाँ दे रही है। हम जो ART सेंटर है और दवाइयाँ भी अवेयरनेस के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन टॉप 5 राज्य हैं, इसलिए वहाँ पर थोड़ा प्रचार की थोड़ी सी राज्य सरकार जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तेलंगाना है और आंध्रा है, ये टॉप 10 में है। जबकि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आबादी में है, 24 करोड़ में है, लेकिन हम लोग बहुत पीछे हैं एड्स के मामले में। लेकिन जो तेलंगाना की सरकार है, आंध्रा की सरकार है, तमिलनाडु कर्नाटक में जाता है। डॉक्टर अनिल जैन भारत के विस्तार से जवाब दिया है। अभी सदन चाहता है तो और विस्तार से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। डॉक्टर अनिल जैन भारत में HIV संक्रमण से वैश्विक औसत में 31% की गिरावट हुई है, लेकिन भारत में HIV की गिरावट 42% हुई है। हमारा मंत्रालय ठीक काम कर रहा है और HIV से होने वाली मौतें दुनिया में 42% कम हुई है, तो भारत में 82% कम हुई है। तो ये भारत हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर कंट्रोल के लिए काम कर रहा है। मेरा प्रश्न है कि जो राष्ट्रीय एड्स और STD कंट्रोल प्रोग्राम है, इसको भारत सरकार आगे चलाना चाहती है क्या, और चलाना है तो इस पर कितना खर्च करना है, ये मेरा माननीय मंत्री से प्रश्न है। ऑनरेबल मिनिस्टर चेयरमैन सर, 90% तो मुझे सवाल सुनाई नहीं पड़ा इन लोगों की वजह से। जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो एड्स से पीड़ित है, जिसकी समाज में भी जो है उसके साथ दोहरा मापदंड रखा जाता है, हमारे विपक्ष के
संवेदनहीनता की पराकाष्ठा का परिचय दे रहे हैं। जो HIV पॉजिटिव लोगों के बारे में हम दवा के बारे में बता रहे हैं, उनके इलाज के केंद्रों के बारे में बता रहे हैं, उनके अवेयरनेस के बारे में बता रहे हैं, उनको संजीवनी योजना के तहत हम लोग वर्चुअल के द्वारा भी इलाज कर सकते हैं। अगर HIV पॉजिटिव को अस्पताल में आने में दिक्कत है तो संजीवनी के माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन इस विषय पर आपका शोर करना आपकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा का परिचय दे रहा है। और ये मोदी सरकार की आप ये देख लीजिएगा कि ये स्वास्थ्य अंत्योदय है, ये हेल्थ का अंत्योदय है कि अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए HIV पॉजिटिव के बारे में हम बहुत कर रहे हैं, इसलिए मदद कर रहे हैं। NHM के द्वारा ये योजना चल रही है और जब 2030 का माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के लिए ये कहा है, जैसे टीबी मुक्त भारत 2024 में करेंगे, सीकल सेल उन्मूलन माननीय प्रधानमंत्री जी ने शेड्यूल किया है, तो एड्स में कमी के लिए 2030 को टारगेट रखा है। इसलिए अगर आपने ये पूछा है कि क्या इस योजना को जारी रखेंगे, NHM अभी 2025-26 तक है, लेकिन जब तक अंतिम व्यक्ति का इलाज नहीं कर देंगे और संक्रमण को रोक नहीं देंगे, ये सरकार अपने इस कार्यक्रम को जारी रखेगी। क्वेश्चन नंबर 124 श्री आर गिरिराजन, मिनिस्टर लग दिया गया है। Tamil Nadu. I want to raise regarding the Neyveli thermal power plant issue. There is lot of agitations going on in Tamil Nadu. The farmers are affected because of the Neyveli project. Whether the central government come forward to solve that farmers were not to acquire that more land to expand the project. Yes, I want to know from the Honorable Minister whether they assure the farmers agitation to solve that Neyveli project, not to acquire more land from there. That is the one I want to know. Honorable Chairperson, sir, the Neyveli power plant actually is being constructed by the Neyveli Lignite Corporation, which comes under another ministry. But I'll convey the sentiment of the honorable member to the concerned ministry. श्री राकेश सिन्हा। सभापति महोदय, मैं पहले भारत सरकार को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि पावर के क्षेत्र में इतनी क्रांतिकारी काम हुआ है। जो लोग लालटेन युग में रहते हैं उन्हें हम बिजली के युग में ले आए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ है, जिसका उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है और जिसके कारण वहाँ के स्थानीय और पूरे देश को लाभ मिला है, वहाँ के मजदूरों के साथ एक समझौता हुआ था और मंत्री जी ने उस मजदूरों के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, लेकिन उस समझौते को लागू नहीं किया जा रहा स्थानीय स्तर पर। इसके लिए मंत्री जी क्या प्रयास करेंगे? ऑनरेबल मिनिस्टर। Honorable Chairperson, sir, that issue was not a part of this question, but nonetheless I have taken note of what our honorable member has said, and I'll have a look at it and I'll get back to it. Dr. Sashmit Patra. Sir, the question is regarding surplus power. Should I come this way? Question is to the Honorable Minister, since this question is regarding renewable energy and surplus power, whether there have been any steps taken by the ministry to engage with states like Odisha, which are producing surplus power, and to try and incentivize states like Odisha to produce more. And sir, I'll just take a very small detour to that, because we have more thermal capacity, we have more hydro capacity, and these capacities can be better utilized of trying to improve more surplus power through states like Odisha. Have there been such discussions with the state governments in doing it? Thank you, Minister. Honorable Chairperson, sir, we have built in a system for incentivizing those states which install surplus renewable energy capacity
which means renewable energy capacity beyond their mandate under the renewable purchase obligation. So any distribution company which is, or any state which establishes renewable energy capacity beyond their mandate, number one, can sell their surplus energy to the states which are having a shortfall against their RPO, and number two, against that they also get renewable energy certificates which has per unit which has a value in the exchange today of 1 rupee per unit. So that's the built-in incentive we have put into the system. Regarding the solar and wind energy for storage, are you planning any pump storages projects all over the India? That is the model now it is coming up. Tell us about something about storage projects, pump storage. Sir, we already have about 4,000 megawatts of pump storage, and I have proposals for approval of 30,000 megawatts more, of much of which we have approved. So by 2030, I think we'll have at least 30 or 40,000 megawatts of pumped storage. Question number 125, Shri Johar Sarkar. Honorable Minister. Supplementary one. Sir, I would like to place before the chair a statement which would like to be endorsed by the finance minister, because the reply that has been... Ask your supplementary. Sir, this is the supplementary. I am putting it in writing. And the other issue is that today Manipur is more important. Number 126, Shrimati Kanta Kardam. मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार वर्तमान स्थिति मैडम 126 ओके अभी नहीं जी सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार वर्तमान स्थिति उपलब्ध क्या है? चेयरमैन सर, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, यह एक ऐसा मिशन है कि जब हमने कोविड की स्थिति के बाद भविष्य में ऐसा कोई डिजास्टर पैंडेमिक आता है तो उसको निपटने के लिए सरकार की तैयारियां होना चाहिए, जैसे कि गांव-गांव तक सुविधा रहे, हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा लोगों को मिले। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी मिशन मोड में ये योजना आई, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। सर, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और कुछ सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट भी इसमें जोड़े गए हैं। सर, इसका बजट है 64,180 करोड़। इतना बड़ा बजट आज तक हेल्थ सुविधाओं में पहले कभी नहीं दिया गया था। ये एडिशनल बजट है, NHM के अलावा यह अलग बजट है। 15 फाइनेंस के साथ साथ ये बजट हमारी हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए किया गया है, जिसमें हमारे सब सेंटर्स, हमारे PHC, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जिसको स्ट्रेंथन किए जाएंगे। आदरणीय सांसद महोदय को मैं ये बताना चाहती हूँ कि 5 वर्ष की ये योजना है। 5 वर्ष में हम प्राइमरी लेवल पे फोकस कर रहे हैं, सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए फोकस कर रहे हैं, जैसा कि करंट और फ्यूचर पैंडेमिक के साथ साथ हम डिजास्टर को मैनेज कर पाए। इसमें सुविधा के साथ साथ, डायग्नोस्टिक के साथ साथ, ट्रीटमेंट के साथ साथ नए हमारे सर्विलेंस सेक्टर को भी जोड़ा गया है, हेल्थ रिसर्च को भी जोड़ा गया है। इसके जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं 17,788 रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.